being an assistant professor of political science at University of Delhi, he is also known to have edited the book Niti Adhyan, Uttar Pradesh 2017-21 edition, and has various publications across the spectrum. He is KASYP Fellow, Germany, and a columnist with leading newspapers. He is a regular contributor with the Quint and other prominent organizations. He has been the national in charge of the study circle of BJP Youth Wing and also vice president of West Bengal BJP Youth Wing. Our second panelist, a man who leads. Mr. Jayant Jigyasu is a doctoral fellow at the Center of Media Studies, School of Sciences, JNU. Apart from being deeply interested in the history of socialist movement and writing extensively on the different phases of social justice in India, he has done his MPhil on broadcasting political messages in the age of media convergence, a case study of Man Ki Baat. Currently, he is working on political rhetoric and its reception in India. He studied radio and TV journalism at IIMC and key concepts and critical thought at Center for Gender, Cultural and Social Processes, St. Stephen's College. He has written The Kingmaker, Lalu Prasad Ki Ankahi Dastan, a biography of Lalu Prasad, former Chief Minister of Bihar and Railway Minister of India. He is also working on the biography of Sharad Yadav, former Union Minister and convener of NDA. Mr. Jayant is a political activist and contested for the post of President, JNU Students' Union Elections 2018. He was the first candidate in JNU, fielded by CRJD, the student wing of Rashtriya Janata Dal. Mr. Jayant's articles have been published in different journals, papers and magazines, websites including Mass Media, Jansatta, Katha Desh, Prabhat Khabar, News Laundry, Satyagrah and The Print. Mr. Rohit Upadhyay, our third panelist, is an independent journalist, documentarian and a famous YouTuber. Mr. Upadhyay has a distinguished career in journalism with a particular focus on reporting on rural issues, minority rights, environmental issues, human rights and culture. In his latest endeavor, Mr. Rohit, together with journalist Pari Saikia, launched the hashtag No Human Trafficking campaign to raise awareness about human trafficking. Through their thought-provoking videos and silent marches, they aim to educate and empower ordinary people about the dangers of this heinous crime. Let us all welcome three of them with a huge round of applause. Now I would like to request our respected teacher in charge, Dr. Atika ma'am, to welcome and felicitate our panelists for the day. We would also like to give a small token of appreciation to Dr. Atika Khan from the Department of Journalism. Yes. I think that should not be a problem. It is an honor to have our panelists with us today, and we look forward to learning from their sense of morality with respect to journalism and the experiences they have collected in the pursuit of their respective careers. Before proceeding with the discussion, let us take a moment to acquaint you all with the format of the panel discussion. We would first like our speakers to share their views and insights on the topic. Then the moderators, Geetika and I, would offer some questions to our panelists, to which they would respond one by one. We will open up the discussion to the audience for questions.
We encourage you to participate and ask as many questions as you may have. Now, without further ado, let's begin our discussion. We would request Mr. Digvijay Singh to initiate the discussion. From there, should I come back? Very hearty good afternoon to one and all present over here. I would take this opportunity to congratulate the media department and of Bharati College and the entire college fraternity for organizing such a marvelous event and picking up such an enlightening topic for discussion. This is a kind of great sense of belongingness to Bharati College because I'm coming here for the second time in the same department. I was here in 2019 and then I'm here post-pandemic, and it is very exciting to always be among young students and learning from them, like what they are thinking and taking it back to the society, to our minds, like what the young generation is thinking. And this topic, that television, TRP and in between, is again a challenge for me because I'm sitting with two co-panelists who directly belong from media itself, and I'm a student of political science. So I'll always try to be politically correct, but in terms of TRP and TVs, we cannot be politically correct. See, in the current times, we'll see that there are numerous challenges that have evolved in the television arena, and we have seen, I'll particularly pick up two juxtapositions that I would like to present before you. Like when we tell कि television और TRP के बीच में क्या आया, तो आप सब कहेंगे कि political manipulations आए, ideological belongings आए, politically motivated news आया, profit making आया, और कुछ लोग कहेंगे कि अभी जैसे हमारे दो bright anchors ने कहा sensationalization of news over sense. But I would locate myself into the autonomy of privacy. And my entire projection of today's panel discussion would be revolving around privacy, challenges, and how ethical and moral questions should be located in this post, you can say, liberal era and the post-liberal truth that we are trying to encipher. बट मेरे से अगर आप पूछेंगे कि टीआरपी और टेलीविजन के बीच में क्या आया, तो मैं कहूँगा ट्रेजेडी आया. और मेरी पूरी बात मैं ट्रेजेडी से ही शुरू करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपने कहा कि रोहित जी ने, अभी मैं रोहित जी को देख रहा था यूट्यूब पर और सुन रहा था, या बहुत लोगों को, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट स्पेस इन जर्नलिज्म दैट हैज बीन क्रिएटेड पोस्ट 2014, now you'll see that there are most independent spaces that are being created. So we'll see that there are marvelous independent journalists that have come up and bringing up the voice from the marginalized. जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि 1970 के दशक में सबल्टन का जन्म होता है, और कहते हैं कि जो लोग एलिटिस्ट की स्टोरीज नहीं बता पाए, उनके लिए सबल्टन मासेस की स्टोरी लेकर आएगा, और जो वंचित रह गए या समाज के हाशिए में रह गए, उनकी कहानियां बताएगा. तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस पूरे मुहिम में 2001 के बाद से जब आप देखते हैं भारत में किस तरह से प्रमोद महाजन आते हैं और लिबरलाइजेशन शुरू होता है मीडिया का, आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने अपने नेचर को वो करते हुए, और रेगुलेशन की बात आई पहली बार कि टेलीविजन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है. तो 2002 में आप देखेंगे कि हमारे भारत की फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में भी हमारा रैंक 30 था. We were 30th in 2002. In 2012, we fall down to 130. And in 2022, we fall down to 150. We are far below South Sudan. Now, there can be opinions that there are biases at the international level of marking the indexes and so on. I'm not getting on to the debates. Whereas when there is a parameter called freedom of press index, so we have to believe that indexes exist and we have to correlate with the reality and coexist with the reality. But numerous challenges are there, the media being the fourth pillar of democracy and catering to the democratization of the minds of the audiences. We need to understand that there are several challenges that have come up, like in the PPP model. You have seen that in 2022 when Adani acquires NDTV, and a certain portion of the NDTV, that too indirectly,
it becomes a hullabaloo in the entire society, and then there is a debate that no, this is the end of NDTV, this is end of ethical journalism, and this is the end of what not. But that is not the end. In 2015, Ambani acquired Network 18. So in a PPP model, you'll always see private players coming in and taking up the role. Then there is again a question that do we give up or do we fight and do we exist in the system? Because there are models that will exist. There are models of buying, there are models of acquiring, there are models in economics that will always exist. So to what extent do we sustain? How do we need to respond to this challenge? These are newer challenges. But in 2020, there comes up a great controversy. That was the distortion of TRP. And now you'll see 1 month prior to this, the ED giving clean sheet to certain news channels. So again, politicization of news being done, and the benefits of politicization is also there. So there are several shades in which we need to talk as young students. We need to always believe that no, there can be independent and fair justice, fair news, fair reporting, fair writing, fair decoding, fair understanding, and fair representation. There are several challenges to journalism in today's context, and we'll all see. We all are students, teachers, participants, journalists. In every form, we try to contribute and create new patterns and understand new patterns. But we also have to understand that in today's time, we have to come up with solutions. And as young minds and young contributors, we all are here to think about solutions. That if there are challenges, if there are paradoxes that are existing, who will break these paradoxes? And therefore, I started by telling that there is tragedy in between. Because tragedy, why I emphasize on tragedy, मैं tragedy या त्रासदी पे क्यों इतना जोर डाल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि किसी तरीके से tragedy दिखाने में, चाहे वो आप देखिए अगर हम queer issues ले लें, LGBT rights ले लें, women की issues ले लें, ग्रामीण भारत की बात करें तो ज्यादातर अखबार, ज्यादातर न्यूज चैनल्स, ज्यादातर ब्रॉडकास्टर्स आपको ट्रेजेडी दिखाने में बिलीव करते हैं. अगर हम थोड़ी सी अप्रोच को, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, और अगर हम इस अप्रोच को सकारात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश करें, न्यूज हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता है, समाचार सकारात्मक नहीं होता, समाचार में बहुत पीड़ाएं होती हैं, पर हमेशा ट्रेजेडी दिखाएंगे और हमेशा सेंसेशनलाइज करेंगे या रैशनैलिटी से बहुत दूर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम मूलभूत आधार जो है समाचार पहुंचाने का लोगों तक, क्योंकि मैं जर्नलिज्म का विद्यार्थी नहीं हूँ, राजनीतिक ज्ञान समझता हूँ, तो उसको किसी तरीके से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करता हूँ. और in that context, I believe that this in TV, TRPs and the entire episode where we have come today and the scenario where we are standing, we have a huge challenge of breaking down this tragedy and bringing in a new context, a new morning of positive news, positive reporting, and also reporting the saddest part of the world to a positive direction and without being biased. And then again there is a question that if at this time, I've just summarized in 2 minutes, अगर हम बात करते हैं कि हम मीडिया हाउसेस को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर पाएंगे या रेगुलेट कर पाएंगे, तो मैं नहीं मानता भारत या कहीं भी किसी भी सरकार का, डेमोक्रेटिक सरकार का यह अधिकार क्षेत्र बनता है. और 2002 से रेगुलेशन की बात शुरू हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट में लास्ट महीने हेट स्पीच को लेकर और हेट स्पीच की तमाम चीज़ों को लेकर रिलेटेड नहीं है, ये एक सार्वजनिक प्रॉब्लम है. आप जब ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो 1895 से लेकर 1895 to 1925, this particular period you will see a lot of deaths, a lot of murders being happening. So Arya Samaj was being popular. Arya Samaj was propagating their own ideas into the society, and most of their prime faces were executed, were murdered. And then the Britishers, some were brought into the hate laws, hate speech, hate crimes, and then to maintain this amicable relations in society, hate laws were inducted in India and IPC, and IPCs have their own problem of distortions again. Now when we come in 2022, again in our judiciaries, we are again talking about hate speech, hate laws, TRPs, anchors को बंद कर सकते हैं कि नहीं, anchors को डार्क कर सकते हैं कि नहीं, anchors को म्यूट कर सकते हैं कि नहीं, पैनलिस्ट को म्यूट कर सकते हैं कि नहीं. 2022 में जब हम उस समय से 100 साल चलकर आगे आते हैं और फिर भी वही डिबेट पर अटके हुए हैं, धर्म के इर्द गिर्द अगर हम अपने न्यूज चैम्बर्स को बनाकर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है, जिसे हम जैसे यंग जनरेशन को बाहर निकल कर आना है, बाहर इस ढांचे को तोड़ने की आवश्यकता है. और ये फिर मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात नहीं है, ये
पेरिनियल प्रॉब्लम है जो रही है। मीडिया का निष्पक्ष होना खुद में ही उतना ही असंभव होता चला जा रहा है जितना आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का मीडिया के रेगुलेट करना या इंटरफेयर करना या आइडियोलॉजीज फॉर मीडिया इंडिस्पेंसिबल नहीं है एक दूसरे के। दे आर नॉट इंडिस्पेंसिबल ऑफ ईच अदर, दे कोएग्जिस्ट, बट देयर आर onus on the young budding journalists like you to create this transparency and accountability both in media. Like we have freedom of speech and expression, but freedom of speech and expression at what cost? That is also the question. And in the coming times, I mean, the further panel discussion will come on to questions from you, and I hope that आपके सारे questions हम लोग ले पाएं और आपके questions का आंसर दे पाएं। पर मेरा निष्कर्ष यही है कि आने वाले समय में हम सब लोगों को सकारात्मक सूचना और सकारात्मक न्यूज की तरफ बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं इस त्रासदी को अवसर में ना बदलकर उस त्रासदी का समाधान अगर हम ढूंढ पाए तो हम अधिकतर सकारात्मक जर्नलिज्म कर पाएंगे। थैंक यू। Thank you for this insightful information, sir. Now let's present some thought-evoking questions to our respected panelists. For the benefit of our audience and for ensuring clarity, questions will be asked both in English and in Hindi. Please feel comfortable to answer as per your choice. My question is to Mr. Jigyasu. पहले पैनल ये खत्म कर लेते हैं। हाँ पहले बोल लें। Mr. Jigyasu, please share your insights. बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर अपने यहाँ बुलाने के लिए। और भारती कॉलेज का जो जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट है और उनका जो ये जर्नोत्सव और आपने नाम रखा है तरसील, मुझे बड़ा पसंद आया। और जब मैं देख रहा था तो मुझे एक शेर याद आ रहा था तौकीर तकी का कि बदन में रूह की तरसील करने वाले लोग, बदन में रूह की तरसील करने वाले लोग, बदल गए मुझे तब्दील करने वाले लोग। और आज हम तब्दीली पर ही बात कर रहे हैं। गांधी मुझे याद आते हैं और गांधी को बतौर जर्नलिस्ट थोड़ा कम पढ़ा गया है हमारी नस्ल के द्वारा। और उस दौर में फ्रीडम स्ट्रगल में जितने लोग शामिल थे वो कहीं ना कहीं इस सहाफ़ी बिरादरी से जुड़े हुए थे। वो कुछ न कुछ लिख रहे थे, कोई न कोई पेपर निकाल रहे थे, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। ये दो प्राइमरी काम तो वो कर ही रहे थे। और गांधी ने कहा कि द ट्रू फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म इज़ टू एजुकेट द पब्लिक माइंड, not to stock the public mind with wanted and unwanted impressions. And therefore, a journalist is to use his or her discretion what to report and what not to report. और इसलिए आपको पढ़ाया जाता होगा गेट कीपिंग की थियरी। तो गांधी उस पर उस ज़माने में ज़ोर दे रहे थे कि सब कुछ खबर नहीं है, हर कुछ जो हम सोच रहे हैं वह ओपिनियन पब्लिक तक ले जाने लायक नहीं होता, और इसलिए आपको एक मानस मंथन करके तब कोई बात कहनी चाहिए। अगर आपके हाथ में कलम है और आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसका बेजा इस्तेमाल भी नहीं किया जाना चाहिए। ज़बां को इतनी आज़ादी न होती तो लफ्ज़ों की यूँ बर्बादी न होती, वसीम साहब कहते हैं। और जो आप कह रहे थे दिग्विजय जी कि हम दरअसल रेगुलेट करने की जो बात कर रहे हैं वह इसलिए कि हम आत्मनियंत्रण वाली सोसाइटी का हिस्सा नहीं रह गए हैं। सिर्फ टेलीविज़न डिबेट्स में, पैनल डिस्कशंस में कोई एंकर आके किसी को म्यूट नहीं कर देता या कर देती। अभी तो लोकसभा के स्पीकर से मीठी शिकायत है राहुल गांधी जी की कि आप हमारा माइक जो है बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के सियासत, सहाफ़त, वकालत, इंसाफ और इंतज़ामिया का जो क्षेत्र है उन सब में कहीं ना कहीं एक विचलन तो देखने को मिला है। और जर्नलिस्ट कोई वैक्यूम से नहीं आते हैं, वो हमारी ही सोसाइटी का रिफ्लेक्शन आपको न्यूज़ रूम में दिखता है।
अगर बाकी वॉक ऑफ लाइफ में डाइवर्सिटी नहीं है तो न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी भी नहीं है। क्या वजह है कि हाईली कॉर्पोरेटाइज्ड मीडिया जो यूएस का है वहाँ भी ब्लैक का रिप्रेजेंटेशन है, और हमारे यहाँ 2006 में जो न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी सर्वे हुआ अनिल चमड़िया का, जितेंद्र कुमार और योगेंद्र यादव द्वारा, उसमें आप देखें मार्जिनलाइज सेक्शन की चिंताएं, उनकी पीड़ाएं मार्जिन में भी आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। जो द हिंदू बहुत प्रोग्रेसिव अखबार है, वह जंतर मंतर पर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें किसी हिंदू के फ्रंट पेज छोड़िए, अंदर के पन्ने भी छोड़िए, वो जो कुछ अतिरिक्त पन्ने होते हैं उसके दूसरे पृष्ठ के किसी कोने में सहमी दुख की हुई सी खबर होती है। यह क्या दिखाता है? और आपने जो उन्वान तय किया है आज के डिस्कशन का कि टीवी, टीआरपीज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, टीआरपी की चिंता करना कोई अनैतिक चिंता नहीं है। जो ऑपरेशनल कॉस्ट है टेलीविज़न को चलाने का, एक तो ये बहुत हंग्री मीडियम है, इसको फीड करना पड़ता है, बहुत महंगा माध्यम है। और मैक्लुहान कहा कि चले गए मीडियम इज मैसेज, लेकिन आज तो दिस मीडियम नीड्स टू बी मसाज्ड। इससे ज़्यादा महंगा कोई माध्यम नहीं। रेडियो को कहा गया हॉट मीडियम। आपने एक्टिव ऑडियंस, पैसिव ऑडियंस पढ़ा होगा। मेरे घर में आज भी टेलीविज़न नहीं है और बहुत सचेतन ढंग से उसको नहीं रखा मेरे पेरेंट्स ने। और जब आप ऑडियो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब कहीं ना कहीं रिसेप्शन के काम में उन इंफॉर्मेशन को या इंटरटेनमेंट के सामान को लगे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही ऑडियो विजुअल मीडियम है तो डिस्टर्ब होता है, कुछ न कुछ आपका राब्ता उस तरह का बन नहीं पाता। और इसलिए आप देखते होंगे कि एक समय बहुत कम इस तरह के डिस्कशन हुआ करते थे, और जो डिस्कशन होते थे, आप 90s का दौर याद कर लें कि किसी सूबे में कांग्रेस की सरकार अगर चली गई है तो उस पर बात करने के लिए कौन है? राजेश पायलट हैं, बीजेपी की तरफ से जसवंत सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जनता दल की तरफ से रामविलास पासवान है। मतलब जो टॉप लीडरशिप थी वही अपना ओपिनियन और मासेस के साथ इंटरेक्शन के लिए जाते थे। आज जो सबसे ज़्यादा कर्कश बोलता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिवोलस ढंग की बातें करता है, उसको टेलीविज़न डिबेट में भेजा जाता है अनफॉर्चुनेटली, और उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं वो चैनल के मालिकान भी। आपने शम्मी नारंग का नाम सुना है? शम्मी नारंग एक बार कह रहे थे कि मेरी माँ इस बात से खुश नहीं थी कि उनका बेटा न्यूज़ रीडर बन गया। मेरी माँ को इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि उनका बेटा अब सलमा सुल्तान के बगल में बैठकर समाचार पढ़ेगा। और ये वही सलमा सुल्तान जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे समय में मधुबाला के बाद अगर किसी न्यूज़ एंकर की मकबूलियत थी तो वो सलमा सुल्तान की थी। और इंदिरा गांधी के दुखद निधन की खबर को जिस कंपैशन के साथ, जिस गरिमा और मर्यादा के साथ उन्होंने पढ़ा, आज भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट को वो सुनाया जाता है। और आज कोई गुजर जाए, कितना बड़ा हादसा हो जाए, हम उसी उत्तेजना के साथ उसको पढ़ रहे हैं। दरअसल यह एजुकेशन है नहीं। एजुकेशन इज द एबिलिटी टू अटेन द स्टेट ऑफ कंपैशन विद इन आवरसेल्व्स। और उसी करुणा का घनघोर अभाव हो गया। 1930s में गांधी गए थे यूएसएसआर और उनसे पूछा वहाँ कि मिस्टर गांधी, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फ्यूचर ऑफ यूएसएसआर? तो उन्होंने एक बात कही कि अ सिस्टम विदाउट सोल कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। उसी सोल का अभाव हो गया है। आज पत्रकारिता हो, संसदीय राजनीति हो, उसका जिस्म तो बाहर से आपको बुलंद नजर आता है, उसकी रूह बहुत नासाज हो चली। अब उसकी तीमारदारी कौन करेगा? तो हर तरह की बातों में हम अगर कायदे से उसकी डिफ्थ में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज अधिकांश न्यूज़ चैनल्स के पास, अधिकांश वेबसाइट्स के पास 20 भी रिपोर्टर नहीं है।
6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ये पैनल डिस्कशन करवाते हैं और इसमें बहुत कम खर्च आता है। हम रियलिस्टिक होकर सोचें कि ऐसा क्यों है। 5 पैनलिस्ट को अगर बुलाएंगे 5,000 भी देंगे, किसी को 10,000, तो वो 30-40 हज़ार में उनका काम चल जा रहा है। लेकिन 1 घंटे अगर सिर्फ न्यूज़ के कारोबार में आपको रहना है तो उसमें बहुत खर्च आएगा। अलग अलग कोने की समानुपातिक रिपोर्टिंग लेकर कोई आए, उससे आप जुड़ें, तब जाके आप ऑडियंस को इंगेज कर पाएंगे। तो असल संकट यह है कि, और जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वगैरह हुए एक समय कह दिया कि यह भी एक किस्म का बिजनेस ही है, यह भी एक किस्म की इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है। तो उद्योग में तो हु पेज द पाइपर सिट्स द ट्यून। अब आपके पास बहुत ज़्यादा वहाँ उलाहना और बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत का स्कोप ही नहीं बचता। Unfortunately, those are not the dominant storytellers who have something to tell, but a small conglomerate of global media who have something to sell. वो हत्या की खबर भी बेचते हैं, वो कहीं के हादसा को भी बेचते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों के बावजूद क्या इतना भी एथिकल प्रैक्टिस संभव नहीं है कि हम मानवीय गरिमा का ख्याल रख सकें। आखिरकार पत्रकारिता किनके लिए है? अगर हम इंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं पब्लिक को, हमेशा आप बहुत डिप्रेसिंग सी बातें ही नहीं उन तक पहुंचाएंगे। कुछ अच्छा भी घटित हो रहा है इस देश में। सारे पार्लियामेंटेरियन करप्ट नहीं है, लेकिन जाओ घेर लो, जाओ अन्ना नहीं गांधी है, जाओ सिविल सोसाइटी के लोग इन लोगों को पथराव कर दो। ये ठीक बात नहीं है। एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत लोगों की शहादत, बहुत लोगों के संघर्ष के बाद हमको हासिल हुआ। इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं किसी संस्था की स्वायत्तता के बारे में। ये विवार्टिस, ये ख्यास वही दिख रहा है एवरी वॉक ऑफ लाइफ में। तो आप जब देखेंगे तो कोई गोल्डन एरा रहा नहीं जर्नलिज्म का। उस वक्त भी टाइम्स ऑफ इंडिया कौन निकालते थे? उस समय भी दूरदर्शन की क्या हालत थी? तब ये था कि एक तमीज थी उस माध्यम की, उसके एक आदाब हुआ करते थे। 24 घंटे कोई प्राइम मिनिस्टर टीवी में घुसा रहे, इससे देश का गौरव नहीं बढ़ता है। इंदिरा गांधी भी थी, इस देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की हिफाजत के लिए उन्होंने भी काम किया, लेकिन इतना नहीं। अब एक ट्रंप की बेटी आती है इवांका, और आप भांगड़ा और भारतनाट्यम करते हैं जहां एक स्टेट मिनिस्टर को भेजना चाहिए था। ये सॉवरेंटी को आप बहाल और इंटैक्ट करते हैं। तो कुल मिला के हम अपने आचरण से किस तरह अपनी देह भाषा, अपनी भाव भंगिमा से लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं, इससे बहुत कुछ तय होता है। उस टीवी और टीआरपी के बीच बहुत कुछ है जिससे होकर आप गुजरते हैं। तो कई बार कोफ्त होती, कई बार अच्छा महसूस होता है। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा, और उन्होंने न्यूज़पेपर के संदर्भ में कहा कि अनफॉर्चुनेटली न्यूज़पेपर्स आर seemingly failing to discriminate between a bicycle accident and the collapse of civilization. आज न्यूज़पेपर तो छोड़िए, जितने माध्यम है सबका वही हाल है कि साइकिल दुर्घटना और सभ्यता के विघटन में इनको कोई अंतर और फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। तो अंधेरा है, और जब आप उसकी पूरी इकोनॉमी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बाहर से जो हमको दिखाया जा रहा है और इतनी गुत्थम गुत्थी, वो दरअसल उनके व्यावसायिक हित का एक कंपल्शन है। और कहते हैं कि लोग देखना चाहते हैं इस तरह से। भाई आप इस तरह से लोगों की अभिरुचि को एक तरह से लिमिट कर रहे हैं। आपसे किसने कह दिया कि लोग सिर्फ गड़बड़ चीजें ही देखना चाहते हैं? बड़ी सौम्यता से कोई आप बात करते हैं तो क्या उसको नहीं सुनते? आप टीचिंग कम्युनिटी को ही देख लीजिए, क्या सिर्फ अनावश्यक उत्तेजनापूर्ण व्याख्यान को ही लोग सुनते हैं, या फिर कुछ ठहराव, कुछ गंभीर, कुछ कायदे की बातें मोटिवेट आपको कर सके? क्या इस तरह के शिक्षकों की क्लासेस में लोग बंक करते हैं? नहीं करते, सुनना चाहते हैं लोग।
वो एक शेर है कि ए बुलबुले खुश इल्हां, आहिस्ता लब जुम्बा, नाजुक मिजाजे शाहां, ताबे सुखन न दारत। जितने एंकर्स को आप देख लीजिए वही कर्कशता। तो ये मैं समझता हूं कि अगर विज्ञापन देने वाले लोग की सूची पर आप ध्यान दें तो एयरबस कहाँ विज्ञापन दे रहा है? जितनी फायदे में कंपनियां हैं उसका विज्ञापन आप देख लीजिए, नजर नहीं आएगा आपको। और जो खुद बाजार में घाटे में है उसके एडवर्टीजमेंट से जब न्यूज चैनल्स चलते हैं तो फिर उसी में कभी बुला लिया मीटिंग और कह दिया कि भाई हम तो माली हालत हमारी ठीक नहीं है, तो पता चला कि 3 टॉप जो न्यूज चैनल्स हैं उनको अब से एडवर्टीजमेंट जाएगा, बाकी से विड्रॉ कर लो। और फिर वहाँ सरकार का दखल बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार जब विज्ञापन देगी तो अपना प्रचार करवाएगी, आपने तमाम अच्छे बुरे कर्म कुकर्म सबका। आप देखेंगे कि एक मतलब इस देश में जो पॉलिटिशियन है बहुत स्मार्टली कैसे लोगों के मानस को समझता है, और नरेंद्र मोदी उस मामले में हिंदी बेल्ट में आप देखेंगे बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन। वो मन की बात लेकर आते हैं और मन की बात के लिए माध्यम क्या चुनते हैं? रेडियो 2014 में। और पहले मन की बात का ब्रॉडकास्ट कब होता है उस समय को आप देख लें। कभी आरएसएस चीफ के संबोधन जो विजयादशमी के आसपास होता था पब्लिक ब्रॉडकास्टर उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करते थे, लेकिन ये हुआ। और मन के बात की जो भावभूमि है उसमें जो जो इश्यूज रेज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और आप आरएसएस चीफ के संबोधन को आप देख लें, आप सही तौर पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कंपोजिट कल्चर की वकालत हो रही है। वो एक उपदेशक भी हैं नरेंद्र मोदी, वो विद्यार्थियों के साथ भी संवाद कर रहे हैं, और वह रेडियो अमूमन हर घर में है एक रेडियो सेट। कोई अगर पारंपरिक रूप से भी श्रोता नहीं रह गया है रेडियो का तो कम से कम एफएम सुन रहा है, गाड़ी में चलते हुए सुन रहा है। लेकिन उस मन की बात का प्रसारण सिर्फ रेडियो पर नहीं हो रहा है, कुछ कुछ ग्राफिक कुछ कुछ विजुअल्स बना के उसका न्यूज चैनल्स पर भी प्रसारण हो रहा है। तो ये जो मीडिया कन्वर्जेंस का दौर है उसमें टीआरपी और उस माध्यम के बीच बहुत तरह की रणनीति काम कर रही है, और कई स्तर पर आपके जीवन में उसका दखल होता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये दौर जो है उसमें कुछ लोगों को ध्यान में रख के अलग किस्म का न्यूज़ आइटम परोसा जाता है, और इसलिए प्राइम टाइम 9 से 10 ही नहीं है बल्कि शाम से लेकर और रात तक आपको यही सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो वो तय करने वाले कौन लोग हैं, डिसीजन मेकिंग में कौन लोग हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और आप देखेंगे कि इस देश में 3 बार केंद्र में सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार, और सोशलिस्ट लोग जिसमें मुख्य भूमिका में थे, और उसमें 2 बार तो उन सरकारों को बीजेपी का समर्थन भी शामिल था और कम्युनिस्टों का भी एक साथ। तो जो आप कह रहे थे कि उसमें आइडियोलॉजिकल जो एक एलिमेंट होता है, उस वक्त के प्रसारण को आप देख लें, उस समय इतने कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट न्यूज चैनल्स नहीं थे, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स थे। और एल.के. आडवाणी ने और कोई मिनिस्ट्री में अपनी पसंदगी जाहिर नहीं की, उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री लेना चाहा और उनको दिया मोरारजी भाई ने। इस देश में 2 ऐसे आईवी मिनिस्टर रहे, लाल बहादुर इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर हुए, और 2 जो कायदे के नजर आते थे, एल.के. आडवाणी और सुषमा स्वराज, ये दोनों लीडर अपोजिशन रहे लोकसभा में। और जितने लोग इन चैनल्स में बहाल हुए जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग में गए, और वहां से किस किस तरह के प्रोग्राम बने, किस दौर में एक चिड़िया अनेक चिड़िया पुराने लोग देखते होंगे, जानते होंगे। इस तरह के भी एजुकेट करने वाले प्रोग्राम भी होते थे।
सिर्फ हो हल्ला ही नहीं होता था, कुछ भेंट वार्ता आपको सुनाई पड़ती थी, कुछ साहित्य की खबरें। अब इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे दिलीप मंडल जी, एक किताब का विमोचन हुआ था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, 13 हो गए, उसका नाम था चिरकुट, और हिस्ट्री के प्रोफेसर ने वो उपन्यास लिखा था, अभी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कलकत्ता में। तो कहा कि स्पेस लिटरेरी आइटम को क्यों नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा आप बेस्ट सेलर हो जाइए, हम उसको जगह देंगे। तो हम बेस्ट सेलर हो ही जाएंगे तो आपके जगह देने का क्या मतलब है? अरे आप मेरा कुछ अच्छी बातों का प्रसार कर दो तो पाठक वर्ग तक वो बातें पहुंच जाएंगी। तो ये बाजार बहुत कुछ तय कर रहा है। कैसे समझाऊं मैं तुझे बाजार का दस्तूर, जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। तो हर किसी की बिक्री लगी हुई है, जमीर न बिके इस बात का ख्याल रहे। जो रूस में 2 लीडिंग पेपर्स थे, इजवेस्तिया और प्रावदा, और इस बात को टीपी त्रिपाठी अक्सर बहुत मजाकिया लहजे में कहते थे। तो एक का मतलब है सच, दूसरे का मतलब है खबर। तो कहते थे, वहां के लोग कहते कि इजवेस्तिया में प्रावदा नहीं है, प्रावदा में इजवेस्तिया नहीं है, खबर में सच नहीं है और जो सच है वो खबर नहीं है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ इसमें गुंजाइश बचे, और वो सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी के बूते की बात नहीं है। कुछ पत्रकारों को अपने घर पर खाना खिला देना, कुछ डिनर करा देना, ये सब पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ करते थे जो उसके प्रेसिडेंट थे। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके मालिक को ही खरीद लिया गया, वही सब राज्यसभा चला जा रहा है। हमारे यहाँ प्रभात खबर था, वो एक ज़माने में नीतीश खबर में तब्दील हो गया, और पता चला कि वो राज्यसभा चले गए हरिवंश जी। आजकल हम लोगों के साथ अलायंस है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें आप खबर देखते तो गुण गाथा और गुणगान के सिवा, स्तुति गान के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर ही काफी नहीं है, स्पीकिंग ट्रूथ अबाउट पावर ये भी जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासतदान और बाकी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब एक कलेक्टिव एफर्ट कर पाएंगे, तब तय हो पाएगा कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है या फिर हम ही हमेशा नहीं रहेंगे सत्ता में। अगर यह सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो शायद लोगों का मोह भंग हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी समाचार की दुनिया में रहने वाला चैनल या अखबार इस संदिग्धता का पात्र बन जाए, लोग उस पर विश्वास कर सकें। ये मैं समझता हूँ हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने अपने विचारों को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया। मूविंग ऑन टू मिस्टर रोहित। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे तीसरी बार ये मौका देने के लिए कि मैं इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकूं। मुझे लगता है कि मोरलेस जयंत भाई ने कवर कर ही दिया है। मैं थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि एज ए जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म स्टूडेंट हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं कि जब भी हम खबर दिखाने जाएं तो हमें हमारे सामने 3 सवाल होते हैं कि क्या हमारा ऑडियंस जो है वो क्या देखना चाहता है। पहला सवाल हम अपने आप से पूछते हैं। और एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर ये कह लीजिए कि जो हम सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, वो आजकल इस सवाल को हर दफे महसूस करते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, जनता क्या देखना चाहती है। दूसरे तरह का सवाल ये होता है कि क्या दिखाया जाना चाहिए। और तीसरा ये है जो सवाल तो नहीं है लेकिन कि क्या दिखाया जा रहा है, जो हो रहा है। तो अब जो तीसरा ये क्या दिखाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरह से हैं कि जो दिखाया जा रहा है आदमी देखना भी उसी के बारे में चाहेगा क्योंकि क्यूरियोसिटी होगी उसके बारे में। पिछली बार भी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर आपको बताया जाएगा कि तैमूर के कपड़े जो है कि 50,000 के हैं तो जूते का भी आदमी को इंटरेस्ट आ ही जाएगा, जिज्ञासु है। तो सीधी सी बात यही है कि जो भी हम लोग टीवी पर देखते हैं, चैनल पर देखते हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है। और खास करके जब हम टीआरपी की बात कर रहे हैं, टीवी की बात कर रहे हैं,
तो ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी टीआरपी जो है बरकरार रहे, क्योंकि इसी से तय होता है कौन नंबर 1 है, और ये डिसाइड करता है कि जो जितना नंबर 1 होगा उतना ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट का पैसा उसको मिलने वाला है। तो ये बहुत साफ साफ है, इसमें कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं से कुछ बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को। अब जब वहां पर रेवेन्यू जनरेट करना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है, तो वहां से सबसे जो सत्ता में सरकार होगी वही आपको एडवर्टीजमेंट देगी, वही आपको पैसे देगी, और वो जिस तरह के मुद्दे उठाएगी वही आप चलाएंगे, उसी का राग जो है आप लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे अपने चैनल पर, लोगों को बताते रहेंगे कि मुद्दे यही हैं। और जैसा कि जयंत भाई ने कहा कि फिर जो हर तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी राइट से जुड़े हों, चाहे वो दलित से जुड़े हों, चाहे आदिवासियों से जुड़े हों, वो हर तरह के मुद्दे आपके जहन से गायब कर दिए जाएंगे और आपको लगेगा कि देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा रह गया, या फिर कि एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है यही जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता था वो ये था कि जो पॉजिटिव न्यूज की हमने दिग्विजय भाई ने बात की अभी, कि पॉजिटिव न्यूज हमें दिखाया जाना चाहिए, इसको मीडिया में स्पेस कम मिलता है। तो ये सवाल दरअसल मेरे सामने भी बहुत आता है कि आप हमेशा ऐसा नेगेटिव न्यूज ही क्यों दिखाते हैं, आप पॉजिटिव न्यूज क्यों नहीं दिखाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब इसको समझने के लिए, जैसे पुराने मान लीजिए जब देश हमारा आजाद नहीं था, उस वक्त अगर कोई पत्रकार होता तो वो पॉजिटिव न्यूज क्या दिखाता। उस समय पॉजिटिव न्यूज क्या होती, यही होती ना कि अंग्रेज बढ़िया काम कर रहे हैं, सब एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सब देश में ठीक चल रहा है, कुछ ठीक करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी बात आती है कि जब हम अब इसमें, क्योंकि जो न्यूज दिखा रहे हैं, और जैसे जयंत भाई ने कहा कि गांधी ने कहा है कि भाई लोगों के माइंड को, पब्लिक के माइंड को एजुकेट करना जो है वो एक कर्तव्य होता है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार आप लोगों का भी होगा आगे चल करके। तो आप अगर किसी खबर को, मान लीजिए कि मैं भी एक गांव में गया यहीं नोएडा के पास में, वहां पे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वहां पे एक पावर प्लांट लगा है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी लोगों को हो रही है। अब मैं इसमें पॉजिटिव क्या दिखाऊं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव, मतलब इसमें कहां से मैं पॉजिटिविटी लाऊं, या किस तरह से पेश करूं कि लोग डिप्रेस ना हो और इसको समझ लें या इस मुद्दे की गहराई को समझें। अब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक कैंसर के इतने सारे मरीज हैं, ये हमारा इंफॉर्मेशन देना हो गया, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आप ये भी तो चाहेंगे कि आप जो बात कहें वो सुनी जाए, उससे जो है चेंजेस आए सोसाइटी में। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप लोग बिल्कुल चाहते हैं। तो यहां पर ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उनकी बात को आप तरीके से, कायदे से, मजबूती से, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके सामने रखें। अब दूसरा बात ये आता है कि उनके सामने हम क्यों रखें, कि लोग कहते हैं ना कि अब सरकार के अच्छे कामों को भी तो गिनाओ, मतलब ऐसे नेगेटिव काम थोड़ी करती है सरकार, जो पॉजिटिव है उसको भी गिनाया जाए। तो अब सिंपल सा एक बहुत बेसिक सा सवाल मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट आपको हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए जब भी आप फील्ड में जाए रिपोर्टिंग के लिए, कि ये जो सरकार है वो बनाई किस लिए बनाई गई। सिंपल सा सवाल, किसके लिए बनाई गई, और क्या ये जो हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं, या फिर हम लोगों ने इनको अपना नेता माना है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना हमारे, हमें रिप्रेजेंट करते हैं ना एक इलाके के लोगों को, उन लोगों ने उनको चुना कि भाई आप जाके हमारी आवाज वहां संसद में रखिएगा, हमारे लिए वहां से नीतियां बनेगी और फिर हमारा जीवन बेहतर होगा। यही तो बेसिक है ना स्ट्रक्चर हमारे देश का जिस पर फंक्शन करता है वो। अब उसी में कुछ गड़बड़ी हो गई कि मान लीजिए कहीं पर पावर प्लांट लगा, विकास का वादा किया गया, लेकिन लोगों का विकास नहीं हुआ, उनको मुआवजा ढंग से नहीं मिला, उनको बीमारियां मिल रही हैं उसके बदले में। अब यहां पर जो हम वॉच डॉग्स बन जाते हैं पत्रकार, हमारा काम ये बनता है कि हम उसी समस्या को ये जाकर के लोगों को बताएं कि भाई देखिए यहां पर आपका काम रह गया है, छूट गया है, ये काम आपको सुधारना चाहिए। अब इसमें नेगेटिविटी कहां से आ गई, इसमें ये कहां से हो गया कि मैं पत्रकार हूं, एज अ जर्नलिस्ट मैं निष्पक्ष नहीं हूं, या फिर मैं पॉजिटिव खबरें नहीं दिखा रहा हूं। अगर मैं पॉजिटिव खबरें दिखाऊंगा, अगर मीडिया के लोग पॉजिटिव खबरें दिखाएंगे, तो जो जनहित में आप जारी करते हैं वो कहां गया।
गवर्नमेंट्स के पास में अपना खुद का अलग डिपार्टमेंट है, फंड रिलीज होता है उसके लिए बाकायदा। जो मन की बात है वो भी एक तरह का यही है कि अपनी खूबियों को जनता तक पहुंचाना। तो उसमें जो पैसा लग रहा है, उसमें जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसके हैं? वो भी तो सरकार के पास में है। तो जब सरकार भी अपनी बात कहने लगेगी और मीडिया भी उन्हीं की बात कहने लगेगी, तो फिर जनता की बात कौन कहेगा? तो सीधी सी बात यही है कि मेरे ओपिनियन में पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज कुछ नहीं होता है। और ये भी नहीं होता, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस जो पावर में हैं, जो पार्टी पावर में है, उसी से आप सवाल पूछिए। उसका कहते हैं ना कि विरोध क्यों करते हैं आप, मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं, राहुल गांधी का विरोध क्यों करते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम मोदी या राहुल या फिर किसी और पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। सिंपल सी बात ये। तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि जब भी आपके सामने टीआरपी का क्वेश्चन है या फिर टेलीविजन में क्या दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्यों दिखाया जा रहा है, तो ये मूल सवाल आपके सामने एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट हमेशा होना चाहिए। Sharing your insightful views on this topic. Now let's present some thought-evoking questions to all our respected panelists for the benefit of our audiences and for ensuring clarity. We will be asking questions both in English and in Hindi. Please feel comfortable to answer as per your choice. My question to all three panelists: do you think TV news journalists compromise on ethics and news values when it comes to TRPs? क्या आपको लगता है TRP की रेस में न्यूज एथिक्स और वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं? यस इसका ये मैं क्वेश्चन लूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा इनसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। दोनों मीडिया के छात्र हैं और मीडिया के लर्नड स्कॉलर भी आप कह सकते हैं। मैं छात्रों में अपने आप को भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कहता हूँ, पर ये अपॉर्चुनिटी मैंने इसलिए लिया। मैं आपसे बस 1 मिनट का समय लूंगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो पैनल डिस्कशन में पहले बोल जाता है, वो अपने आप को वंचित महसूस करता है कि यार अब तो खेल गया, बॉल स्विंग हो रही थी, एज दे दिया, चला गया, तो मौका अपने पास लेना चाहिए दोबारा। मैं जयंत भाई और रोहित भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा बिकॉज जयंत जी को तो मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, रोहित को मैंने पहली बार अपने साथ पैनल में सुना है और कल मैं बहुत देर लगभग 4-5 घंटे यूट्यूब में दोनों को देख रहा था। आजकल क्या लिख पढ़ रहे हैं वो भी देख रहा था। जयंत भाई का मोदी जी के प्रति थोड़ा सा प्यार बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि घूम करके वहां आते हैं। तो आप सब मीडिया के छात्र हैं, मैं आपको एक सिनारियो इमेजिन कराना चाहता हूँ। मेरा मकसद पॉजिटिव न्यूज दिखाने से नहीं है। हम जब सरकार में भी होते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार की आलोचना बहुत हो, तभी सरकार काम कर पाती है, पर अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बार बार ट्रेजेडी और स्पेस की लोकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लिखते पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं जो आपको हमेशा सरकार के भी अंदर, सरकार के लेफ्ट पे खड़ा मिलूंगा सवाल पूछते हुए, क्योंकि जब कमान आपके हाथों में होती है तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। नाउ माय पॉइंट इज, आपको एक अगर हम सिनेरियो में याद कराना चाहूँ, जैसे जयंत जी ने लालू प्रसाद यादव जी का बायोग्राफी लिखा है, तो हमें इस टीआरपी के माध्यम और न्यूज की नेचर कैसे चेंज हुआ, इस पे बात करते करते 90 से 2020 के ये 3 दशकों में जर्नलिज्म का नेचर कैसे बदला, ये भी देखने की जरूरत है। लालू यादव जी का ट्रायल चल रहा होता है, अभी रिसेंट है, बेल पर पेरोल पर बाहर आते हैं। जर्नलिस्ट 2-3 सवाल पूछता है। जर्नलिस्ट बहुत अच्छे चैनल से आता है, अच्छा बुरा ये आपका है तय करने का है। जर्नलिस्ट है, हम जैसा ही साधारण व्यक्ति है, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है, प्रश्न पूछने जाता है, दोबारा प्रश्न पूछता है, लाइव टीवी पे लालू यादव कहते हैं मारेंगे 2 मुक्का गिर जाएगा। दिस इज कैरेक्टर, because this has happened in Bihar, this has happened in Bengal, we have all been there and the fear been construed in the minds of the journalists, and वहां से हम अच्छे एथिकल जर्नलिज्म भी हमने देखा है। जैसे बहुत सारे उदाहरण जयंत जी ने दिया। मन की बात से lot of people have their own ideas that why the prime minister, it is the government. मार्गरेट थैचर भी काम करती थी, अपने चीजों को बाहर लाने के लिए हर सरकार करता है। बिल क्लिंटन करते थे, ओबामा करते हैं, सब लोग किसी ना किसी माध्यम से जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ मेथड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज चोजन दैट कैन ऑलवेज बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द इनोवेशन, द आइडिया दैट ही हैज ट्रांसेंडेड हैज बीन सक्सेसफुल।
Today we are talking about Mann Ki Baat because through Mann Ki Baat since 2014 till 2023 he has run a successful model of broadcasting his ideas and his campaign through the medium that nobody has even imagined that ऐसा किया जा सकता है. Similarly, आज के दिन में पॉजिटिव न्यूज दिखाना आवश्यक नहीं है, पर पॉजिटिव अप्रोच से चलना मेरे ख्याल से ज्यादा सकारात्मक हो सकता है. मैं ज्यादा जर्नलिज्म नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज कैसे चलता है. सेकंड तरीका, न्यूज दिखाने के तरीके की भी बात की जाती है. जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा. ये यंग जनरेशन है, कश्मीर पे 2 मूवीज बनी है, हैदर और कश्मीर फाइल्स. ये 2 रिसेंट मूवीज हैं. आप यंगर जनरेशन को हैदर दिखाओ. मैं नेशनलिज्म पे काम करता हूं, तो मैं लोगों के साथ काम करता हूं, बच्चों को दिखाता हूं, तो हैदर को 3 से 4 बार देख सकते हैं. मैं भी देखता हूं. हैदर को लगभग मैंने 17-18 बार देखा है. विशाल भारद्वाज की मूवी है. सिमिलरली अगर आप कश्मीर फाइल्स दिखाओगे, बच्चा 1.5 घंटे में उठ के भाग जाता, या एक बार देख लिया तो हो गया. तो किस तरीके से उसको क्रिएट करना है, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में भी हमें देखना है कि हम किस तरीके से अगर न्यूज तैयार कर रहे हैं और हम अगर सत्ता के विरोध में न्यूज तैयार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मेथड्स और कुछ ऐसी क्वालिटी एश्योरेंस करना तो हमारा काम है. हम अपनी फेक न्यूज के जमाने में, येलो जर्नलिज्म के जमाने में चैलेंजेस जर्नलिस्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा है, और सरकार के ऊपर चैलेंज इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहती है, अभी 1 महीने पहले जब ट्रायल्स चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहती है आप कुछ ऐसा करो, रेगुलेट करो. मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत आसानी से कहते हैं कि मेक श्योर करो कि एंकर को क्यों नहीं चुप कराया जा सकता है, और मेक श्योर करो कि म्यूट क्यों नहीं किया जा सकता है. ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है. और आप लोगों को ज्यादा तसल्ली तब होगी जब मैं रेफरेंस में एनडीटीवी कहूंगा. रिपब्लिक कहूंगा तो आप कहेंगे कि बिका हुआ है. तो एनडीटीवी का न्यूज लिंक आपके साथ में शेयर भी कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल प्रसारित है. लाइव ब्लॉग का भी पूरा सीरीज चलेगा, आप देखेंगे किस तरीके से बात हो रही है. और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर को वहां पर रिप्रीमांड किया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रही है. आप सेकंड पहलू देखिए, जिस दिन गवर्नमेंट तय कर ले कि आज रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, पूरी मीडिया, पूरी सिविल सोसाइटी सरकार पे चढ़ जाएगी कि ये तो भाई अनार्की है, टायरनी है, लॉलेसनेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हनन है, रेगुलेट करना चाह रही है, हमारे घरों में घुसना चाह रही है, दिमाग में घुसना चाह रही है. तो सरकार की तरफ से मैं ये आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपके तरफ मीडिया के 2 टेक्निकल पहलू ये लाएंगे, पर जब आप काम करते हैं और जब सरकार से इंटरैक्ट करते हो, ये तमाम चैलेंजेस है जो सामने आते हैं, तो इसको भी देखने की जरूरत है. इट इज वेरी इजी टू टेल मीडिया बिक गई. इट इज वेरी इजी टू टेल सरकार ने खरीद लिया है. इट इज वेरी इजी टू टेल फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि रेगुलेट क्यों नहीं कर रहे हो भाई. अरे कोशिश तो 2002 से चालू. None of the governments, all the governments have failed. In 2012, TAM had a case with NDTV filed a case against TAM, Television Audience Measurement. अकेली मोनोपोली थी TAM की, वो रेगुलेट करती थी, एंड TAM के ऊपर आरोप लगा कि ये सर्टेन चैनल्स को बायस एंड उस अप्रोच के थ्रू रेटिंग्स देती है. कहीं ना कहीं टीआरपी का गेम यहाँ है. 2015 में TAM ये केस हार जाती है. Then government regulated BARC आती है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रेगुलेटिंग काउंसिल आती है, और आज BARC इतनी मोनोपोली एंजॉय कर रही है. 1000 से ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग चैनल से 75,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स हैं. कैसे एक एजेंसी रेगुलेट कर सकती है? बहुत सैद्धांतिक क्वेश्चन है. ना सरकार के पक्ष में बात है, ना सरकार के विरोध में बात है, पर एक काउंसिल BARC इज रेगुलेटिंग एवरीथिंग. सो कहीं ना कहीं इसकी डेमोक्रेटाइजेशन की बात करनी चाहिए. देयर शुड बी मल्टीपल एजेंसीज. इसके नियम तय होने चाहिए, रेगुलेशंस आने चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं टीआरपीस को आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हम कंट्रोल, रेगुलेट, या ये जो बातें, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं जो कंट्रोल और रेगुलेट जैसे शब्दों से बहुत दूर रहता हूं. वी कैन नॉट कंट्रोल और रेगुलेट इंडिपेंडेंट मीडिया. सेकेंडली, आज जब बीएआरसी की रेगुलेशन की बात आ रही है, इसकी फंडिंग्स की बात आ रही है, तो आप देखेंगे कि कैसे टीआरपी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मुंबई में 1000 से ज्यादा घर नहीं होंगे, 1500 घर होंगे. पूरे भारत में 45,000 सैंपल्स दिए जाते हैं. क्या इस सैंपल से आप कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं टीआरपीस आर डिस्टॉर्टेड, ह्यूमन माइंड्स आर समवेयर इन्फ्लुएंस्ड, and therefore this game of entire TRP and distortions are it is being inducted in the minds of the people. And therefore as a neutral observer I would say that there has to be a balanced approach. Judiciary cannot come and reprimand the government, civil society cannot reprimand the government, because ultimately you need a government. We are not banana republics. गवर्नमेंट रहेगी तभी आप चलेंगे. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, अगला चुनाव हमारा हरा दीजिए, नए मेथड्स लाइए, नई सरकारें लाइए,
या अपने सरकार अपने स्टेट में ऑल्टरनेटिव देकर दिखाइए कि और सरकारें कैसे कर रही हैं। मैं तो स्टेट्स की हालत और खराब है। आप अगर भारत की प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, स्टेट्स की इंडेक्स की बात करेंगे तो जहां बंगाल जिसे रेनेसा और रेवोल्यूशंस का जगह माना जाता था, बंगाल में घरों को जला दिया जा रहा है चुनाव में वोट नहीं देने के लिए। कोई बात नहीं करता, न्यूज है ही नहीं, न्यूज चैनल जा ही नहीं सकते। मैं व्यक्तिगत रूप में 7 जिलों में रहा हूं, न्यूज चैनल्स आते ही नहीं, आ सकते भी नहीं। तो इन चीजों पे आज इलेक्शंस नहीं करा पा रहे हैं आप किसी राज्य में, और उससे कवरेज नहीं हो रही है, और इस चैलेंज पे इस पे कोई डिबेट नहीं हो रहा। इस सकारात्मकता को इसलिए आप नहीं लाएंगे क्योंकि वहां बीजेपी सरकार में नहीं है। इस अप्रोच को भी बदलने की आवश्यकता है। थैंक यू। Thank you, sir. Again, this is open to all. Sir, like you said that there should be a balance. क्या आपको लगता है कि बिना एथिक्स और न्यूज वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए टीआरपीज को इंक्रीज किया जा सकता है? अब देखिए, ये तकनीकी रूप से जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है, मौद्रिक लाभ, वो आप तरीका अपनाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एथिक्स को मेंटेन रखते हुए और टीआरपी की दुनिया में बिल्कुल ढुलक जाएंगे। उसको एकदम मेंटेन किया जा सकता है। और आज की तरह ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं थी जिस ज़माने में, तब भी अखबारों का सर्कुलेशन तो नहीं गिरता था। वह भी एक माध्यम है, बाकी किसी भी संचार माध्यम की तरह। तो दूसरा कि ये टीआरपी का, टेलीविज़न का, ये ऑलमोस्ट सेटल्ड डिबेट है। वो एमसीक्यू की तरह ही आप देंगे, फिर भी एक ही उसका उत्तर होगा। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नए पन की तलाश में कुछ और 2 कदम आगे बढ़ सकें और उसके साथ एक समन्वय स्थापित करके चल सकें जिसमें बहुत मूल्यों का शरण न नज़र आए, ये है। एक बात कहने का लोभ मैं नहीं संवरण कर पा रहा हूँ। कार्टूनिस्ट, कार्टून भी एक बड़ा माध्यम है, वॉल राइटिंग भी, ग्राफिटी भी। जिस ज़माने में नेहरू पर शंकर ने 4000 के तकरीबन कार्टून बनाए, उसी नेहरू ने उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और पवन का नाम आपने सुना होगा, पटना के तमाम अखबारों में पवन का, लालू जी की आमद के काफ़ी पहले सत्येंद्र सिंह वगैरह के समय भी वो कार्टून वगैरह बनाते थे। तो वो अपने कार्टून का बंडल लेके एक अणे मार्ग गए सीएम हाउस और कहा कि, और पटक दिया उनको उस पूरी पोटली को, और कहा कि हम लगाना चाहते हैं एक एग्जीबिशन और आपको आके उद्घाटन करना है। तो लालू जी मुस्कुराए और बोले कि रात दिन मेरी ही बखिया उधेड़ते और मुझसे ही कहते हो कि ये तो ये कैसे। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि नेहरू ने भी अपने खिलाफ कार्टून बनाने वाले के एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, और अगर आप उस रिवायत को मेंटेन करेंगे तो आपका नाम नेहरू की फहरिस्त में शुमार हो जाएगा। तो ये सब कहा कि उनको कुछ कुछ अपने डोरा डालने की कोशिश आप कहें किया। लेकिन लालू जी बार बार कहते रहे कि अरे भाई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वीपी सिंह, चलो दिल्ली में करवा देंगे उनके हाथों, तुम्हारा बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हो जाओगे, दिल्ली देश की राजधानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं या तो आप ही उद्घाटन करेंगे या हम इसमें आग लगा देंगे। और लालू प्रसाद जाके उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं, 2 दिन बल्कि जाते हैं, और उसमें लालू प्रसाद को चारा खाते हुए दिखाया गया है। यह भी उस प्रदर्शनी में वह कार्टून भी लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक तरह का लोकतांत्रिक मिजाज नेताओं का हुआ करता था एक ज़माने में, उसका कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अभाव, फिलहाल कोई अपनी आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और वो जो कार्टून की किताब है संकलन की, उसका नाम लालू लीला है, और उस नाम से किताब लिख दिया सुशील मोदी ने, हालांकि पवन को नहीं एक्नॉलेज किया। ये भी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। तो वो सुशील मोदी के पास जब गए पवन की, लालू जी आ रहे हैं, आपको भी आना है, तो क्या बात करते हो, लालू जी ने तुमको मूर्ख बना दिया। ऐसा कोई करता है कि अपने ही खिलाफ इस तरह से बढ़ाना करवाए कोई खुद को। तो लेकिन ये हुआ। मेरा कहना है कि आप जिस इंसिडेंट का हवाला दे रहे हैं, और आपने कहा कि तौर तरीका क्या है आलोचना का, उस क्लिप को मैं कहूँगा कि फिर से देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि लालू प्रसाद के बारे में है वह सवाल, रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट कर रहे हैं, और भी एयरपोर्ट पर भी और एक जगह और। जब आप देखेंगे तो वह एक तरह से पॉलिटिशियन को जिस तरह से डिमीन किया जाता है, जैसे राजनीति बहुत खराब और गंदा फील्ड हो, राजनीतिज्ञ जो हो वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया का दुष्चरित्र इंसान हो,
इस तरह का माइंड सेट लेकर जब आप सवाल करने जाते हैं, आप पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, है आप चारा घोटाला कर देंगे, आप ऐसे करेंगे, आपकी बेटी का नाम उसमें है, और एकदम जिस तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश हो, ऐसा किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिनिस्टर कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ हर आदमी बड़ा होता है। मैं आदमी की लघुता में नहीं यकीन करता, मैं समझता हूँ इंसान बहुत बड़ा है, वह है, उसकी सत्ता है, उसके बाद यह देश दुनिया तमाम ताल्लुकात हैं। वो जो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। तो ये लहजे का कमाल है कि चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, और किसी को आप ह्यूमिलिएट करते हैं, किसी को, अब आपसे मैं हाल चाल पूछूं, उसमें तंज भी हो सकता है, और उसमें एक किस्म की एम्पैथी भी हो सकती है। तो ये हमारे मानस पर निर्भर करता है ना। शुक्रिया पुरसिशे अहवाल का ये दोस्त, सिर्फ लहजे से मफहूम बदल जाते हैं। तो माने बदलते हैं टोन से, लहजे से। आप किस तरह से सवाल कर रहे हैं, और आप ठीक कर रहे हैं कि अगर हमारा मकसद ये है कि सरकार अच्छा काम काज करे, और इस दृष्टि से अगर हम सवाल कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई आलेख लिख रहे हैं, और उससे कोई बात, कोई पॉलिसी जो है डिटरमिन हो रही हो, तो ये अच्छी बात है जी। Thank you so much, sir. Another question open to all panelists. आपके अनुसार टीवी न्यूज सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? टॉपिक सिलेक्शन किस बात पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और टीवी जर्नलिज्म सोशल मीडिया पे प्रैक्टिस किए जा रहे जर्नलिज्म से किस तरह अलग है? तो रोहित भी बता। ये एक मतलब बहुत ब्लंटली अगर मैं कहूं तो ये बात सच है कि टीवी का जो है न्यूज नहीं, एजेंडा पहले से तय होता है। और क्योंकि मैं कुछ टाइम तक मैंने काम किया भी है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास खबरें नहीं होती थी, लेकिन ये कह लें कि उसका स्ट्रक्चर हमारे पहले से ही होता था कि हमें इस तरह की खबरें आज चलानी है। तो वो सुबह 7 बजे ही तय हो जाता था, जब तक हम लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाते थे। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है वो तो अब कहना बहुत मुश्किल है। पहले तो होता था कि कहीं से कोई न्यूज रिपोर्टर लेकर के आता था। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि रिपोर्टर भेजे जाते हैं दिल्ली से, और ये इस चीज को आप लोग भी महसूस करेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ के हमने देखे हैं कि जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने वाले बहुत अच्छे और बहुत शानदार पत्रकार हैं, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। जो लोग सही में मतलब कि निष्पक्ष होकर के रिपोर्टिंग करते हैं, सूचना घटना हम तक पहुंचाते हैं, हमने देखा है अपने बॉसेस को उनको ये कहते हुए कि आप इस एंगल से लेकर के आइए। उदाहरण मैं देता हूं आपको किसान आंदोलन का। तो किसान आंदोलन के वक्त पर हमारे एक मित्र हुआ करते थे जो टीवी में अभी भी हैं मित्र, तो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है आपकी खबर का एंगल क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमें ये दिखाया गया है, मुझे ये बोला गया है स्ट्रिक्टली कि जितने भी ये लोग शराब पी करके डांस कर रहे हैं इनका वीडियो बनाना है हमें, और आज ये खबर चलनी है। तो आप सोचिए कि इस तरह से तय होता है। ये पहले से बोल दिया गया कि इसी तरह के जो भी कहीं भी कोई नाचता गाता हुआ दिख गया तो उसका वीडियो बना लेना है, और ये तो किसान आंदोलन है ही नहीं, आंदोलन नहीं, यहाँ तो मौज मस्ती चल रही है। तो ये पूरा इस तरह से मैं कहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम लोगों के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कल को हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिपोर्टर्स बनेंगे, आपसे भी इस तरह से एक एंगल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इस पर खबरें ले आइए। दूसरा जो आपने सवाल किया कि जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे अलग है। ये पिछले दिनों में यूट्यूब के साथ में एक ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा। उनका ये कहना था कि आपके पास में ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस क्यों नहीं करते हैं। तो अब उनका ये सुझाव था कि जो मीडिया में चल रही है, मीडिया का मतलब जो टेलीविजन या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनके भी तो सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिस पर 24 घंटे वो अपलोड करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उनका ये सवाल था कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन्होंने जो ट्रेंड क्रिएट किया है उसके अराउंड आप क्यों नहीं अपना जर्नलिज्म करते हैं। तो ये एक रिपोर्टर के लिए मतलब मैं बहुत आहत हुआ पर्सनली इस सवाल से। उनको मेरा ये जवाब जो था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो सीधा यही था
कि एज अ जर्नलिस्ट आप कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों की आवाज बने, उन लोगों की आवाज, उन लोगों के मुद्दों को हम सामने ले आए जिनकी अभी तक कोई सुन नहीं रहा था। तो एक तरह से हम तो उस न्यूज को, उस पर्टिकुलर न्यूज को हम लीड कर रहे होते हैं एज अ रिपोर्टर। हम हो सकता है कि दुनिया में पहले हों जिन्होंने उस गांव में, उस जगह के उन लोगों को पहली बार आवाज दी हो। तो अब वो ट्रेंडिंग में तो है नहीं, तो अगेन समस्या ये है कि यूट्यूब फिर उसको आपको हेल्प नहीं कर सकता है अपने एल्गोरिदम में। आपके व्यूज नहीं आएंगे, आप कितने दिन तक मीडिया चला लेंगे, कितने दिन तक आप बिना व्यूज के काम कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो वैकल्पिक मीडिया या फिर कहें कि यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए, यहाँ वहां लिखना पड़ता है। उनमें से मैं भी एक हूं। तो प्रॉब्लम यही है। अब जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ट्रेंड में कैसे बने रहें। तो वो वही करते हैं कि मान लीजिए अब आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो सबने अपने हिसाब से देख लिया कि भाई हिंडनबर्ग को हमारा जो ऑडियंस किस तरह से देखना चाहता है, उसी तरह का न्यूज परोसा जा रहा है। तो अब इसमें समस्या क्या होती है कि ये पूरा एजेंडा तो सेट किया हुआ मीडिया का ही है, और मीडिया को आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि इस समय कौन कंट्रोल कर रहा है। जो ये हमेशा से रहा है, ये आज की बात नहीं है, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, पहले भी रहा होगा। तो अब जो कंट्रोल कर रहा है वो अपना एजेंडा सेट करवा रहा है, और उसी के कहें कि ताल पर सब बाकी भी डांस कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के एंकर्स हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे स्टार्स हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे सामने चुनौती है ये एज अ जर्नलिस्ट, कि हम सोशल मीडिया में ही कैसे सर्वाइव कर पाए, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को ला पाएंगे, या फिर हमें भी ट्रेंड ही फॉलो करना पड़ेगा। That was quite a fascinating discussion. Thank you to all three of you. We have certainly been enlightened. We would now open that session for our audience to ask questions and to our panelists, to our respected panelists. So, Yes. गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन रोहित उपाध्याय जी से है। जैसा कि आपने बताया आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और आपने अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे कि आपकी जर्नी में आपने पहले काम करा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और फिलहाल आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। तो जैसे हम लोग भी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे लिए क्या आपकी एडवाइस होगी कि अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, यू नो, some guidelines from your experiences. Thank you. एक चीज जो मैं सबको कहता हूं, जो मतलब पहले लोग इंटर्न्स आते थे, मैं उनको बहुत बैठा के समझाता था। मैं नया था, लेकिन मुझे मतलब ये लगता था कि जो प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूं इनको नहीं गुजरना है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप पत्रकारिता में आए हुए हैं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको जो है इसमें इंटरेस्ट है, तो बहुत ही दो बेसिक सी चीजें हैं, पढ़ना और लिखना। वो आप हमेशा जारी रखिए, पढ़ना, लिखना, समझना, चीजों को देखना, अपने तरीके से देखना। और कभी भी जो भी आप लिखते हैं तो हमेशा जो है कभी ऐसे मत सोचिएगा कि मैं एक परफेक्ट रिपोर्ट लिखूंगा या लिखूंगी। हमेशा जो है आप लिखते रहिए, दूसरे लोगों को पढ़ते रहिए, लोगों का काम देखते रहिए। तो अब इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में अगर आप जा रहे हैं तो ये दिमाग और इससे निकाल दीजिए कि आपको वहां पर पढ़ाई से छुटकारा मिलने वाला है, कहीं पर नहीं। यहाँ पर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हो सकता है फेल हो जाओ, वहां पर पढ़ के नहीं जाओगे तो जेल हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो पढ़ाई और लिखाई बस दो चीजें हैं, आप लिखते पढ़ते रहिए, और बाकी आप यही जो आप पढ़ेंगे वही आप हो सकता है कि कैमरा जब ऑन होगा तो बोलना भी शुरू कर देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो मेरा क्वेश्चन जैन सर से है। सर, आजकल के जनरेशन में काफी जर्नलिस्ट के ऊपर भरोसा खत्म हो रहा है, इवन पॉलिटिक्स पे भी। तो इस चीज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस भरोसे को वापस उस काबिल कैसे बनाया जाए, कायम कैसे करा जाए?
ये दरअसल राजनीति और पत्रकारिता का संकट ही नहीं है, ये मनुष्यता का संकट है। अगर उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, जितने तरह के दर्शन हैं, जितने तरह का साहित्य है, जितनी सभ्यताएं हैं, उन सब के मूल में है प्रेम। और वह मानव के प्रति अगर प्रेम रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेंगे जिससे कहीं दंगा फसाद भड़क जाए। तो अगर लार्जर इंटरेस्ट हमारे ध्यान में है ह्यूमैनिटी का, तो मुझे लगता है कि यह भरोसा भी रिस्टोर करने में हम सफल होंगे। आपको ध्यान होगा बचपन में सबके पास कोई कैमरा तो होता नहीं था घर में, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो को भी खिंचवाने के लिए स्टूडियो जाते थे। और जब स्टूडियो जाते थे तो बहुत आदमी थोड़ा अच्छा सलीके का कपड़ा पहनता था, जबकि वो नहीं दिखाई पड़ना है जूते, लेकिन जूते भी अच्छे से कंघी करके। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में रहता था कि रील खराब ना हो जाए और एक बार में जो फोटो क्लिक हो वही फाइनली उसको धुल के वो आ जाए और हमें मिल जाए। तो उस समय भी एक यूजेज और फिर ग्रेटिफिकेशन दोनों हमारे दिमाग में रहता था कि हम बेजा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का ना करें। और आज तो आप देख रहे हैं जितने मन उतने आप क्लिक कर लो, और 1 सेकेंड का कोई विजुअल बनाने के लिए किसी भी चैनल पर बड़ी मशक्क़त होती है, उसमें बड़ा संसाधन लगता है। और हम लोग शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बना दिया। तो मानव जब संसाधन में तब्दील हो जाएगा तो फिर मानवता के जो मसाइल हैं उससे हमारा ध्यान कहीं ना कहीं हटेगा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी ये अगर ट्रस्ट का कोई इशू है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट है कहीं आजकल रिश्ते में भी, आज कोई अपने पड़ोस से खाना नहीं शेयर कर रहा है, वाईफाई शेयर कर रहा है सिग्नल, और वाईफाई सिग्नल जो वो नेटवर्क बहुत पुअर है, ये ज़्यादा हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। गांधी कहते थे डोंट बी सो फास्ट, ठहरो। ये ठहराव का शायद हमें ज़्यादा आज की तारीख में उसकी ज़रूरत है। अज्ञे की एक कविता मैं आपको उसकी कुछ लाइन आपको बताऊं कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, मारे जाएंगे रावण जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। लेकिन उसकी भी अपनी एक अहमियत प्रासंगिकता बची हुई रहती। शुक्रिया। Thank you, sir. This is the last question we'll be taking due to time constraints. Sorry. Hello everyone, I am Shailja and my question is from Rohit sir. Sir, does the latest Indian news channels really look for TRP only? Yes. Yes. Unfortunately, yes. And also, तो आई थिंक कई बार ये होता है कि जैसे ये आपने सवाल पूछा तो उससे बात निकल गई कि दिग्विजय भाई ने अभी एक स्टेट का जिक्र किया कि वहां पर प्रेस को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये बात सही भी है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सवाल ये है कि वहां एक बार पिछले साल मार्च के आसपास एक वहां से घटना आई कि कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया है, और उस समय पूरे मीडिया हाउस में वो खबर चलने लग गई कि मुस्लिम्स ने हिंदुओं के घर को जला दिया, बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, और इस तरह की पूरा एकदम सेंसेशन क्रिएट हो गया सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि खबर आती है कि नहीं उसमें तो जितनों की डेथ हुई वो सारे मुस्लिम्स हैं। फिर सारे चुप हो गए। तो बात यह है कि उसके बाद कोई बात नहीं, बात यह है कि टीआरपी ही नहीं, अपने जहां से पैसा आ रहा है ना उनका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है टीवी न्यूज चैनल्स को। One last question. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा सवाल रोहित सर से है। मैं जैसे कि आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर एक सिनेरियो पेश किया कि जैसी वो रिपोर्ट आई, जो यूट्यूबर्स चैनल्स हैं, जो भी ओपिनियन चैनल्स हैं,
उन्होंने मैंने खुद देखा कि जैसे देशभक्त एक चैनल है, तो उनकी विदिन 3-4 आवर्स में उनकी वीडियो प्रिपेयर होके आ गई। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी लंबी थी, विदिन 3 आवर्स उनकी रिसर्च कैसे पूरी होगी, मैं आज तक इस कंफ्यूजन में हूँ। और मेरा ये सवाल है कि जैसे टेलीविजन के साथ हम टीआरपी को एसोसिएट कर देते हैं, बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बात पे कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म आज कंटिन्यू हो रहा है, क्या वहाँ पे एक तरीके की टीआरपी या एक तरीके का बैक सपोर्ट नहीं होता है, किसी भी तरीके का जहाँ से वो मैनिपुलेट होते हैं? क्योंकि जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं टारगेट तो नहीं करना चाहूँगी, बट एक चैनल का नाम लेना चाहूँगी, ध्रुव राठी एक चैनल है जो कि अपने ओपिनियन शेयर करते हैं बहुत सारे मुद्दों पे, बट उनके वीडियोस का भी जैसे जो शुरुआती दौर से उनका एक फॉलोअर रहा है, जैसे कि मैंने देखा है, तो उनके वीडियोस में एक पैटर्न सेट हो चुका है। वो क्रिटिसाइज ही करते हैं, जैसा कि सर ने बोला कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड, बट एक अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उनका जो एक सेट पैटर्न है वो भी तो एक इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपका क्या मानना है कि सोशल मीडिया भी टीआरपी से चलेगा? देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ काम करते हैं कि टीआरपी तो नहीं होता सोशल मीडिया में, जैसे कि हमने बात की कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स का ख्याल रखना पड़ता है जितने भी लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, या फिर और दूसरी बात आपने जो ये कही कि वो अपने विचार रखते हैं जिस तरह से एक ही तरह का, तो वो हो सकता है कि उनका अपना विचार हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना विचार रखते हैं और उसके लिए स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं या फिर अगर आप पत्रकार होने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि ध्रुव राठी एक अच्छा चैनल है आपके लिए फॉलो करने के लिए। और जो आपने ये बात कही कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अगर कोई 3 घंटे 4 घंटे में रिपोर्ट, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुद्दे की समझ है, आपको पता है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, कैसे कंपनियां काम करती हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर आपको समझ है, तो ये बहुत बड़ा केस नहीं था, उसमें समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन वही है कि उस लेवल की समझ के लिए किसी आपको एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारा डेटा को खुद भी एनालाइज करना होगा, और उसको उस लिखने में ही मुझे लगता है, मुझे तो 2-3 दिन लग जाएंगे एक रिपोर्ट लिखने में, और लगता भी है। मैंने एक बार विजय माल्या के केस पर रिपोर्ट की थी और मुझे लगता है कि मुझे 1 महीने लग गया था उसको पूरा कंपाइल करने में, समझने में, और उसमें भी मैंने एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की हेल्प लेनी पड़ी थी मुझे। तो ये होता है, मतलब ये जल्दी के दौर में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि पहले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, अब थोड़ा सा न्यूट्रल हो गए हैं, फिर कल को हो सकता है कि पब्लिक के अगेंस्ट ही बात करने लग जाए। तो समस्या ये नहीं है कि कौन किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उससे मतलब एक जर्नलिस्ट का जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, वो ये है कि क्रिटिसिज्म पे मत जाइए आप। क्रिटिसिज्म तो जो पावर में होगा उसका होगा, जो हमेशा जो है जर्नलिस्ट पावरफुल लोगों के अगेंस्ट ही मिलेगा आपको। जो अगर सही में पत्रकार अगर कोई है तो सवाल हमेशा जो है पावरफुल लोगों से पूछेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे उससे लागे कोई मंत्री हो। तो मूल सवाल ये है कि क्या आप जनता के साथ में हैं या नहीं है। आप अगर जनता के साथ में हैं तो कौन अगेंस्ट है, ये पत्रकार को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I just conclude. I just want to add certain things to आपने जो सवाल पूछा 2 लोगों ने कि जर्नलिज्म में, तो हम जब क्लास में जाते हैं, मैं जब पढ़ाने भी जाता हूँ तो अपनी आइडियोलॉजी को दीवार के बाहर छोड़कर जाता हूँ। हम सब की आइडियोलॉजीज है, हम सब किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, नहीं भी करते, कुछ लोग न्यूट्रल हैं। पर मेरा मानना है कि आप जब पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, आप सबसे निवेदन है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ क्लास में, मेथड पे काम करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन ए मेथड। सवाल जरूर पूछ रहा है, मैं क्लास में बहुत एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो क्या चल रहा है दिमाग में पता नहीं चलता। काम करने की आवश्यकता, तो अपने मेथड्स पे काम करने की आवश्यकता है। यंगस्टर्स, आप सबको मेथड पे काम करना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने पंचायत सीरीज देखी है, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, पर वो वन ऑफ द मोस्ट वैसे बोलते हैं ना, बिना कम मेहनत की और बहुत कम काम करके आज जो सक्सेस का पैरामीटर बना है। पंचायत एक ऐसे जगह पर, बहुत ट्रेडिशनल गांव आप नहीं बना पाए, आपने गांव में पंचायत बना दिया, वेस्टर्न यूपी का कोई भी जगह चुन लिया या कहीं चुन लिया, भाषा आपने रख दी ईस्टर्न यूपी की, और प्रॉब्लम समस्याएं जगह दिखा दी कहीं और की। तो जहां फिल्मों में, सीरीज में, न्यूज में मेहनत कम हो गया तो ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। यही मैं पॉजिटिव जब कह रहा हूं
मैं सकारात्मकता इसमें लाने की बात कर रहा हूँ कि आपका मेथड क्या है। निर्मल पाठक की घर वापसी एक सीरीज है सोनी लिव पे, आपको जिसको भी समय मिले देखिएगा, उसे मेथड कहते हैं। आपको काम करना है, सिनेमा बनाना है, न्यूज बनाना है, लेक्चर बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, पीएचडी थीसिस लिखनी है, हम सब उसी प्रक्रिया से निकलेंगे। मेथड पे जरूर काम करिए, और आप जब निर्मल पाठक की घर वापसी पंचायत को एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कोहड़ा कहते हैं पम्पकिन, उससे पेठा बनता है और उससे मुरब्बा बनता है। कोहड़ा से मुरब्बा बनाना और उसके फ्लेवर से मुरब्बा बनाना बहुत डिफरेंट है। आजकल फ्लेवर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ओरिजिनलिटी लाने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। Due to time constraints, we now move forward to vote of thanks. Ladies and gentlemen, as we bring this panel discussion to a close, on behalf of Bharati College, I would like to extend our sincere thanks to our distinguished panelists, Mr. Digvijay Singh, Mr. Jayant Jigyasu, and Mr. Rohit Bharti, for sharing their insights and expertise on this salient topic. We are honored to have had such knowledgeable and experienced experts with us today, and are extremely grateful for accepting our invitation and gracing the occasion with their benign presence. Principal Ma'am, our teacher in charge, Dr. Radhika Ma'am, and teachers for facilitating the smooth execution of the event. Our college administration, the technicians, our cleaning staff, our creative team, and the Union of Tahsil, Department of Journalism, along with all our lovely students for making today's event a resounding success. We would also like to extend our gratitude to our official sponsor, the Boya Board of India, our media sponsors, DU Competitions, DU Adda, and Delhi University Circle. We would also like to thank our audience for their participation and engagement throughout this discussion. We hope that you have found this discussion informative and thought-provoking, and it has deepened your understanding of this important issue. Once again, thank you to our panelists, moderators, audience, and organizers for contributing to this enlightening discussion. We wish you all a very great day. Thank you all for coming. Please remain seated. We'll have a group picture together with the panelists. Thank you.